मंच पर हम सबके बड़े और यूनियन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, मंच पर उपस्थित मणिपुर के दो विधायक श्री राजकुमार ईमो सिंह जी और श्री यांगथोंग हाउकिप जी, मैं दोनों का सादर अभिनंदन करता हूं। आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि मणिपुर से two of the very eminent personalities have joined the Bharatiya Janata Party. As you all are aware that because of the developmental work undertaken by our Prime Minister, and especially the kind of work our Prime Minister has done for Northeast, everyone in Northeast, not only the people of Northeast but politicians of Northeast are also impressed and influenced. And that's the reason as to why two very eminent politicians of Manipur are joining Bharatiya Janata Party today. As far as R.K. Emo Singh is concerned, let me introduce Mr. Rajkumar Emo Singh ji to you. He is a two-time MLA. He had won in 2012 and he had also won in 2017 as a Congress MLA in 2017. And you would be happy to learn that as far as Mr. R.K. Emo is concerned, his father, late Sri Rajkumar Jayachandra Singh, was not only the first Union Minister of Manipur, from Manipur in fact, but he was also a very ardent and a hard-working Chief Minister. And he was a Chief Minister from the Congress Party, Rajkumar Jayachandra Singh. So R.K. Emo is the son of Mr. Rajkumar Jayachandra Singh. He has been elected as the MLA from Sagolband Assembly constituency in 2017-2012. Before this, he was the General Secretary, Administration and Organization of Manipur Pradesh Congress Party from 2016 to 2019 and 2019 to 2020. He has been appointed as the All India Congress Committee AICC Election Observer for Tripura Assembly Election 2018. He has been a member of Drafting Committee of All India Congress Committee Plenary Session 2018 headed by Dr. Manmohan Singh ji. He had been a member of political group of AICC plenary session 2018 headed by Sri A.K. Antony, and he has been a member of All India Congress Committee till 2020. He has been a member of election committee of Manipur PCC from 2016 to 2020, and he has been a member of executive committee of Manipur PCC from 2016 to 20. So in fact, apart from this, the number of other important badges that Sri R.K. Emo Singh wears in his sleeves, we take this opportunity of welcoming Sri R.K. Emo Singh to the fold of Bharatiya Janata Party, and we can assure him that this is a democratic political party where you have an open field and a level playing ground where you can perform your best under the guidance of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, under the guidance of our party president Shri Jagat Prakash Nadda ji. As far as our second candidate is concerned, his name is Mr. Yanthong Haukip. Mr. Yanthong Haukip is a well-known politician, especially in the hill area of Manipur, and he has been the MLA of 46th Assembly Constituency, Saikul Assembly, since 2012, so it's almost going to be 10 years now that he has been an MLA. He has been an advisor to the Sadar Hills East Haukip organization, an advisor to the Haukip People's Council, an advisor to Sadar East Kipgen Haukip organization Manipur, and vice president of Young Farmers Association. So of course, we are proud to have both of these eminent politicians of Manipur in the fold of Bharatiya Janata Party, and I'm sure in the days to come we will be working together to form the next government with 2/3 majority in Manipur. Ab ki baar 40 par, as the slogan goes in Manipur. I would now request our respected Union Minister, a very well-known figure of Northeast, our ever-smiling Sri Sarbananda Sonowal ji to address us. परम आदरणीय हमारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय समिति की वरिष्ठ नेता डॉक्टर संबित पात्र जी,
माननीय संजय मयूख जी और आज मणिपुर से आए हुए हमारे दो माननीय विधायक आर के इमो सिंह जी और यांगथंग हाओकुप जी और हमारे आज उपस्थित पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं आप सबको हृदय से शुभकामना देता हूं और हमारे जो दो विधायक मणिपुर से आए हुए हैं बीजेपी में शामिल होने के लिए, दोनों को मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और आपको मालूम है कि पिछले 7 साल के अंदर हमारे देश के आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए तो काम किया ही सही, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को जिस हिसाब से उन्होंने ध्यान दिया, नॉर्थ ईस्ट के प्रगति के लिए जैसे आग्रह दिखाया, मजबूत कदम उठाए और नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ देश के अंदर नहीं दुनिया में अलग सा पहचान देने के लिए जो उन्होंने अपनी भक्ति भावनाओं से कदम उठाया, इसकी वजह से आज नॉर्थ ईस्ट देश के अंदर जाग उठा है, अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है और प्रगति की रास्ते पर जोर से चलने लगा है। इसके लिए मैं भी नॉर्थ ईस्टर्नर हूँ, इसलिए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। मैं हृदय से नॉर्थ ईस्टर्न होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और साथ साथ में आपको मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट का हर प्रदेश तरक्की करने में लगी हुई है और मोदी जी ने पिछले 7 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट को हर विषय पर आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने केंद्रीय हर मंत्री को नॉर्थ ईस्ट दौरा करने के लिए आदेश जारी किया, जिसकी वजह से आज पहले क्या होते थे कि नॉर्थ ईस्ट का मंत्री हो, अधिकारी हो, उनको दिल्ली आना पड़ता था हर विषय के लिए, छोटे छोटे विषय के लिए। मोदी जी ने कहा नहीं, हम खुद नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, हम आपका ख्याल रखेंगे, आपके विकास के लिए हम मजबूत कदम उठाएंगे, मेहनत करेंगे। तो इसलिए मोदी जी ने जो उदाहरण खड़ा किया है, ये नॉर्थ ईस्ट के लोग कभी नहीं भूल सकते। इसलिए मैं आज सही आप लोगों ने निर्णय किया, आर के इमो सिंह जी और यांगथंग हाओकुप जी सही निर्णय किया है। बीजेपी में शामिल होने का बाद आपको पता चलेगा बीजेपी हमेशा समाज की, देश की हितों के लिए हमेशा निष्ठा से काम करती है। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन आया है देश के अंदर, इसकी वजह से आज देश के हर नागरिक अपने आत्मविश्वास जगाने में सफल हुए हैं और सबको मनोबल मिला है और सबको लगने लगा है, हाँ, मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होने जा रहा है, ये निश्चित है। तो इसलिए मणिपुर की प्रगति के लिए आपने आज बीजेपी में शामिल हुए और मैं मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, बीरेन सिंह को। उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है और अपने प्रदेश की जनता को साथ लेकर मोदी जी के आशीर्वाद से उन्होंने भी मणिपुर को बहुत आगे बढ़ाया है। मैं यहाँ से धन्यवाद देता हूँ। फिर से मणिपुर की जनता को हृदय से भक्ति भावनाओं से प्रणाम देते हुए दोनों आर के इमो सिंह जी को और यांगथंग हाओकुप जी को फिर से बीजेपी स्वागत करता हूं और मैं आपको भरोसा देता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जैसे आज देश की सबसे लोकप्रिय एक पार्टी के हिसाब से बीजेपी को खड़ा करने में जिस निष्ठा से लगे हुए हैं, आपको भी इस विषय पर निष्ठा से शामिल होने के लिए मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि बीजेपी ही आज देश सेवा करने का सबसे सही रास्ता है। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सदस्यता ग्रहण समारोह में मेरा आग्रह होगा आर के इमो सिंह साहब से कि आप भी 2 शब्द रखें। माननीय आर के इमो सिंह। Good morning, everyone. Respected Union Minister ji, respected Sambit Patra ji, all members on the dais, print and electronic media people. Thank you so much, sir,
for accepting us as part of your family. परिवार में शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. I would like to thank the Honorable Prime Minister, the Honorable Home Minister, and the Honorable President for accepting us. We are so delighted to be here. बहुत खुशी हो रही है कि हमें आज इन मौके पे भी हमारे असम के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी हैं हमारे साथ, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथ में एक साथ काम करने का यहीं से उदाहरण मिल रहा है हमें. और जो पिछले 6-7 सालों में प्रधानमंत्री जी ने जो किया है देश में, जो उन्नति के लिए, जो विकास के लिए, जो फॉर पीस, फॉर स्टेबिलिटी, व्हाटएवर हैज बीन टेकन अप by the government of India under the leadership of our Prime Minister. We have been so across the country, across different aspects of people and life, everywhere. It has been so forthcoming. ऐसा लगता है जैसे मतलब पहले यहाँ दिल्ली आते थे लोगों को मतलब एक अलग सा वो होता था. आज इज सो डिफरेंट. जो काम उन्होंने कश्मीर में किया है, जो नॉर्थ ईस्ट में और खास के मणिपुर में ILP जो लाना, a historic decision by the Prime Minister of India, by the Union Home Minister. And now, in these last 5-6 years, even in our state, the kind of progress we have made. जब पिछले 2017 में जब हम लोग आए थे, उस टाइम पे there was so much of issues of Hill Valley divide, law and order issue. कितने महीने वहाँ पे बंद ब्लॉकेड होता था, आज वो देखने को नहीं मिलता हमारे मणिपुर में. जो हिल वैली डिवाइड है, जो रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर में जो किया है, टू गेट द यूनिटी, टू ब्रिंग एवरीवन ऑन बोर्ड, द हिल्स डे, द पीपल्स डे, द गो टू विलेज प्रोग्राम, द चीफ मिनिस्टर्स हक्सेल, ऑल दीज थिंग्स विच हैव बीन डन अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. इनके वजह से हमें ये जो मौका मिला है यहाँ आने को, वी वांट टू वर्क फॉर दिस पार्टी, फॉर द गवर्नमेंट, टू इंश्योर दैट देयर इज स्टेबिलिटी in our state under the leadership of Honorable Chief Minister of Manipur, and to ensure that we come back to power again by 2/3 majority in the next election. Thank you so much. मेरा सादर अनुरोध होगा यामथोंग बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24.